شہر اولیاء کے مکینوں کے لیے خوشخبری، قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں دبئی میڈیکل گارڈن کی طرز پر بنے گا سیاحتی گارڈن، جہاں ہوں گے خوبصورت رنگ برنگے پھولوں سے بنے ماڈلز اور تاریخی مقامات۔ ڈیزائن کی تیاری پر کام شروع، حکومت پنجاب 3 کروڑ کے فنڈز دے گی۔ پنجاب حکومت کا ملتان ڈیولپمنٹ پیکج تاخیر کا شکار، ادارے فنڈ سے محروم، 200 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل نہ ہو سکی۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ فنڈ کی فراہمی کے بعد منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے میونسپل کارپوریشن ملتان سے خرچ ہونے والے ترقیاتی فنڈز کا حساب مانگ لیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں 6 ارب 5 کروڑ 52 لاکھ 58 ہزار روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے گئے۔ ملتان کے نواب پور روڈ پر 10 سے زائد چمڑے رنگنے کے کارخانے آلودگی پھیلانے لگے، شہریوں کے بیمار ہونے کا خدشہ، محکمہ ماحولیات خاموش، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات محمد ادریس کا موقف دینے سے انکار۔ صدر چمڑا مارکیٹ ایسوسی ایشن کہتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں جگہ فراہم کرنے کو تیار نہیں۔ بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، وکٹوریہ اسپتال میں ہیپاٹائٹس اور آنتوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنے گا، جگہ مختص کر دی گئی۔ میاں کے شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ ہیلتھ کی جانب سے مفت میڈیکل اسکریننگ کی جائے گی، تیاریاں شروع کر دی گئی، میڈیکل ٹیسٹ 19 فروری سے 25 فروری تک جاری رہیں گے۔ رحیم یار خان میں عام عوام کے لیے پبلک ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کے انعقاد کے لیے سمری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دی گئی۔ ہیلتھ اسکریننگ کیمپ میں 30,000 افراد کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ توسا شریف میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا ٹراما سینٹر جدید سہولیات سے آراستہ، آپریشن تھیٹرز کے لیے جدید مشینری پہنچا دی گئی۔ ملتان نشتر اسپتال میں سیزنل انفلوئنزا کے 5 مریض زیر علاج، جنوبی پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 56 ہو گئی۔ محکمہ ہیلتھ میاں صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم، ڈرگ انسپیکٹر فرقان قریشی کے قمر مشانی میں میڈیکل سٹورز پر چھاپے، نشہ آور ادویات رکھنے پر الرحمان میڈیکل سٹور سیل کر دیا گیا، متعدد میڈیکل سٹورز کو ڈی ڈی خان میں ڈویژن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، ناقص مٹھائی کی تیاری کرنے پر 2 بیکری سیل، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو 57,500 روپے جرمانے بھی عائد کیے۔ لوزنا ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات مکمل، بروقت پولنگ اور شفاف نتائج کے لیے اپلیکیشن متعارف کروا دی گئی، تمام نتائج اسلام آباد الیکشن کمیشن آفس سے کم وقت میں موصول ہوں گے۔ لودھرا حلقہ N 154 ضمنی انتخابات میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے میپکو کو مراسلات جاری۔ لودھرا میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں، پیپلز پارٹی بھی سرگرم، بستی جلال آباد میں عوامی جلسہ، امیدوار برائے قومی اسمبلی مرزا علی بیگ کا خطاب، کہا پیپلز پارٹی پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ لودھرا ضمنی انتخابات میں 3 دن باقی، سیاسی سرگرمیاں عروج پر، پاکستان تحریک انصاف کا پرمٹ چوک پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی شان علی کا درد رکھتے ہیں، جیت کر علاقے کی عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے۔ N 154 میں ضمنی الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروج پر، پی ٹی آئی کے مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری جنرل فاروق حبیب، سابقہ ٹاؤن ناظم ندیم آفتاب سندھو،
सबका अपोजिशन लीडर राजा रियाज, यूथ सदर वेस्ट रीजन पंजाब हसन नयाजी और डॉक्टर असद मुअज्जम ने लोधरा में अली तरीन की इलेक्शन कैंपेन की। लोधरा में तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह का दिन भर सियासी ताकत का मुजाहरा। मुख्तलिफ मकामात पर गल से खादिम हुसैन रिजवी ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। कहते हैं दीन खाने पीने का नाम नहीं, दिल में इश्क़ रसूल हो और वोट किसी और को दो, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से इलेक्शन में इंतखाबी निशान तब्दील करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लोधरा की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। लोधरा इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं की जिला काउंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि नून लीग ने लोधरा की आवाम के लिए बहुत से तरक्याती काम कराए। जनूबी पंजाब की तमाम महरूमियां सिर्फ बातों से हल नहीं हो सकती। आयशा गुलाली की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि जनूबी पंजाब की इस्तेहसाली के लिए अमली तौर पर जंग लड़ना होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ फज़ा गिलानी की ज़ेरे सदर पीपल्स पार्टी का इजलास। सिटी और ज़िले सतह पर रुकनीत साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीगी रहनुमा समीउल्लाह चौधरी ने भी कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन लाहौर में जमा करवा दिए। कमिश्नर बहावलपुर पर आवाम का एतमाद। बेहतरीन और दयानतदारी से काम करने पर इंटरनेशनल एनजीओ ने कमिश्नर साकिब जफर को इंटेग्रिटी अवार्ड से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो सिंध फरीदुद्दीन और विमेन एम्पावरमेंट खैबर पख्तूनख्वा की अफीफा खटक भी ऑनलाइन मुकाबले में मद्दे मुकाबिल थी। बहावलपुर चिड़ियाघर से मुल्हिका आबादी ने चिड़ियाघर को गुजरगाह बना लिया। दीवार फैलाकर आना जाना मामूल बन गया। शहरियों ने तफरीगाह को कूड़ादान बना डाला। इंतजामिया भी गंदगी ठिकाने लगाने में नाकाम। मियांवाली में लैंड रिकॉर्ड सेंटर शहरियों को सहूलत मुहैया करने में नाकाम। साइलिन फर्ज जायदाद के हसूल और जमीन के इंतकाल के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर। महकमा तालीम लिया ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चक नंबर 403 चार दीवारी से महरूम। हुकूमती अहकामात के मुताबिक स्कूल की चार दीवारी 8 फुट ऊंची होना लाजमी है। सरकारी अस्पतालों की निजकारी का मामला। राजनपुर में हेल्थ प्रोफेशनल अलायंस के तहत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुतालबात के हक में नारेबाजी। जिला अराई में 80 साल काबिल जोया खानदान से जमीन खरीदने का मामला। रिहायशियों का पटवारी, तहसीलदार और बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा। उधर गाजी खान में नाबीना अफराद की जानिब से बुनियादी हुकूक न मिलने पर एहतजाज। मुल्तान वासा मुलाजमीन ने भी सुख का सांस लिया। तनख्वाहों के लिए चेक पास कर दिए गए। मुतादिद की अकाउंट्स में ट्रांसफर। दीगर को कल सुबह तक मिलेंगी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत पोलियो इजलास। नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने का हुक्म दे दिया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो इजलास में महकमा सेहत और एजुकेशन अफसरान की शिरकत। बहावलपुर में पोलियो मुहिम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डीपीओ बहावलपुर मुस्तनसर फिरोज का मुख्तलिफ थानों और खिदमत सेंटर का दौरा। स्टाफ की हाजिरी और तामीराती कामों का जायजा लिया। उधर हिंदिया खान का पुलिस खिदमत सेंटर शहरियों को सहूलत फराहम करने में मसरूफ। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मौसम सरमा के आखिरी आयाम में मुल्तान पुलिस को गर्म जैकेट देना याद आ ही गया। पुलिस लाइन में एहलकार और अफसरान को नई जैकेट दी जा रही है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में नए एमडी की तैनाती के लिए एचआर की मीटिंग।
अर्बन यूनिट की जानिब से 4 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट। डरा गाजी खान में कम्युनिटी ट्रेनिंग सिस्टम के तहत रेस्क्यू अहलकारों की ट्रेनिंग। यूनियन काउंसिल की सतह पर लोगों को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबियत दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के हवाले से नई पॉलिसी जारी। उम्मीदवारों के टेस्ट की वीडियो लाहौर भिजवाई जाएगी। डीआईजी ट्रैफिक ने डीडी खान, भावलपुर, भावलनगर, मुजफ्फरगढ़ और लिया के अजला के अफसरान को खत जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में तकरीब का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सईदुल्लाह मुगल और एंटी करप्शन बहावलपुर के जज चौधरी हुमायूं इम्तियाज की खुसूसी शिरकत। जुडिशरी और बार के दरमियान बाहमी ताउन को यकीनी बनाने की हिदायत की। अलहदा सूबा खुद मुख्तार हाई कोर्ट का हसूल और फिरोजवाला में वकील परवेज अख्तर चीमा के कत्ल के खिलाफ डीजी खान और मुल्तान में वुकला की हड़ताल। वुकला अदालतों में पेश नहीं हुए, साइलीन खार। 2 सहेलियों से शादी करने वाले नौजवान के खिलाफ दूसरी बीवी के वालिद की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में समाअत। नौजवान को तंग न किया जाए, अदालत ने पुलिस को पाबंद कर दिया। मुल्तान फैमिली कोर्ट में खातून की जानिब से नानो नफका का दावा। कोर्ट ने शोहर को 20,000 रुपए नकद जबकि 2,000 रुपए माहाना खर्च अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। कॉलेज यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा गैर मयारी देने का मुआमला। शहरी की जानिब से दुकानदार के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट मुल्तान में 5,36,550 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। खानेवाल थाना सिटी सिविल लाइन्स में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 22 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। 39 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। 3 मुंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया। डेरा गाजी खान में एंटी करप्शन को रिश्वत के जुर्म में एएसआई को गिरफ्तार करना महंगा पड़ गया। थाना बी डिवीजन के नादिर अली की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस का छापा मासूम पर मुबैना तशद्दुद, बेटी भाई को फरार करा दिया। महकमे की जानिब से कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई। मुल्तान पुलिस की मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। देहली गेट से 100 किलोग्राम चर्च और 9 लाख रुपए बरामद। थाना सिटी खानपुर से शराब की 480 बोतलें भी बरामद। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। उधर मियांवाली में 6 जवारी, 2 मुंशियात फरोश और 1 खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल में इन्फ्लुएंजा आगाही कैंप का इनेकाद। अवाम को हाथ धोने समेत मर्द से बचाव की दीगर एहतियाती तदाबीर बताई गई। मुल्तान के इदारे समझदार में तकरीबें तकसीम असनाद। बीच 3 फेज 2 की तालिबात को कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स और किट्स तकसीम की गई। चोलिस्तान जीप रैली पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएं। होम डिपार्टमेंट की जानिब से आईजी पंजाब और बहावलपुर के अफसरान को मरासला। रैली 15 से 18 फरवरी तक मुनक्किद होगी। गवर्नमेंट ख्वाजा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीमिया खान में 56वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मेहर खालिद अहमद ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। फौजी बैंड और तलबा की रंगारंग परफॉर्मेंस। और मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में शानदार ऑटो शो का एहतमाम। मुख्तलिफ मॉडल, स्पोर्ट्स और दीगर गाड़ियों समेत मुख्तलिफ कंपनीज की जीपें भी नुमाइश में शामिल।